Hey there, hello, hi everyone, welcome back to the channel and happy new year to all of you. This year 2026 may bring a lot of happiness, joy and prosperity in your lives. And Today we will continue in this Python programming course where we were learning about while loops, है ना? So we were learning about while loops. We were learning about loops actually. So in this video lecture we'll be learning about while loop. So you already know what are loops, how for loop actually works. This in this video lecture, we will be learning about while loops. So let's move to the first thing. The first point about the while loop. This loop is different from the for loop. So in for loop, we have a starting point. The I iterator starts from some start point. It ends at some ending point. है ना? In while loop, it's condition based. So it's more of like the syntax is like this. While this condition returns you true, this condition is true, this condition holds true, write your code here. कि मतलब यहां से आप अपना कोड लिखिए, ठीक है, कूल है. So that is how you are going to do in this while loop. This is a condition based loop. So let's see the flow of this loop. The flow. So the flow is simple. Condition is checked. If the condition is true, then what do we do? If the condition is true, then what do we do? तो क्या करेंगे अपने? If the condition is true, then execute the code. Otherwise, नहीं तो फिर क्या करेंगे? Otherwise, what we'll do? If true, execute the code. Otherwise, what? Break out of the loop. So if this is true, then क्या कहते हैं उसको, execute the code and then move to condition check again. मतलब यहाँ पे तो it's more of like moving like this. If not, if false, then condition is checked. If false, then break. फिर while loop से बाहर आ जाएंगे. So and this is how the flow is going to be. Cool है? Then apart from that, what do we have? Let's take an example. So question is 1 to 10. तो फॉर लूप से तो हो ही जाएगा. आई इटरेटर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, रेंज फंक्शन वही सेम 11 तक चलाना है उसको, एक स्टेप आगे बढ़ाना है, सिंपल. वाइल लूप से करते हैं इसको. वाइल लूप से करना सिंपल है. वाइल लूप से कैसे करेंगे? आई इज इक्वल्स टू 1 वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू क्या 10 प्रिंट आई लाइक दिस. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, समझ आ गया? What apart from that? Simple है. Find the sum. Let's do the sum of first
10 natural numbers. अच्छा समझा था तो कुछ था ही नहीं, आंसर था। ठीक है, तो चलना नहीं है सब नहीं, सॉरी, आंसर 55। ठीक है, सो द सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स इज 55, सो वी प्रिंटिंग इट हियर। ठीक है, एंड यही है, दैट्स ऑल। Anything apart from this? So once the loop is successfully executed, we can use this else thing, print तो अगर ये लूप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है तो वी विल मूव टू द एल्स ब्लॉक। सो वाइल वट एवर वी हैव दिस रन्स completely successfully, then we move to the else block. If it doesn't run successfully, then we do not move to the else block. Second point. तो कह सकते हैं कि सेकंड पॉइंट कह सकते हैं कि while some condition write some code here. So if this is successfully executed, this loop, then you go to the else block. ठीक है, कूल है, यही है जो है। देन अच्छा, तो अगर सब कुछ था ही तो वाई डू वी इवन नीड दिस वाइल लूप, है ना, अगर फॉर लूप से सब कुछ हो रहा था। तो दिस इज जैसा कि कहा कंडीशन बेस्ड लूप है। That means we have something like ki while, we have something like ki while conditional input, है ना, read conditional, it's more of like कि conditional input reading means कि we have, let's say अपने को क्या करना है कि keep reading numbers until 7 is encountered। तब तक उसको रीड करते रहो, 1 2 3 4 7 आ गया, ब्रेक। So keep entering, enter 1, enter 2, enter 3, enter 4, now enter 7। ठीक है, सो ऐसे करके अब क्या होगा आपका, यू विल रीड इट, यू विल ब्रेक, कि भाई तब तक रीड करते रहो नंबर्स तब जब तक। तो इट्स मोर ऑफ लाइक कि अगर आपको स्ट्रीम्स में से इनपुट रीड करना, एक्सट्रैक्ट करना है, जहाँ पे इनपुट का कोई साइज़ नहीं है ना, नॉट अ फिक्स्ड साइज, या फिर इसको कह सकते हैं कंडीशनल रीड। देन प्रेफर while loop. This is something you have to take care of, and let's see the practical example of this thing. इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस लेट्स से वी हैव num इज इक्वल्स टू 0। तो भाई तब तक रीड करते रहो, कीप रीडिंग until this num is not equal to 7, then num is equals to input enter a number। ठीक है, इसको कर देंगे इंट में टाइप कास्ट। और जैसे ही सक्सेसफुली ब्रेक हो जाते हैं इस लूप से, वी विल से ओके 7 इज एनकाउंटर्ड। लेट्स सी, एंटर नंबर 3 4 5 6 7।
7 इज़ अनकाउंटेड। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मैं कंडीशन बेस्ड इनपुट रीड कर रहा हूँ कि आई एम रीडिंग नंबर्स अप अंटिल दिस नंबर अपीयर्स। जैसे कि रोल नंबर बोलते हैं ना, रोल नंबर बोलते जाओ, दिस राहुल, रामन, है ना, कि तब तक बोलो जब तक ये बंदा, इस पर्टिकुलर बंदे का नाम नहीं आया। ऐसा, लेट्स से यू आर रीडिंग फ्रॉम, यू आर सर्चिंग फॉर अ नेम, तो तब तक सर्च करते रहो, ब्रूट फोर्स सर्च जिसको कहते हैं, है ना, कि ब्रूट फोर्स सर्च कर रहे हो फ्रॉम फर्स्ट नंबर टू द लास्ट नंबर, फ्रॉम द फर्स्ट नेम टू द लास्ट नेम। तो तब तक सर्च करते रहो जब तक एक पर्टिकुलर नाम ना आ जाए, है ना। जैसे मान लीजिए इसी में देख लेते हैं, नेम ले लेते हैं, इसकी जगह नेम ले लेते हैं, है ना, इट्स अ स्ट्रिंग, until the name is not equal to, ठीक है, तब तक ठीक है। तो लेट्स सी, ठीक है, लेट्स सी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, तो मतलब तब तक नाम रीड करते रहो जब तक कि आपका ये जो नेम है ये इसके इक्वल नहीं हो जाए, ये कंडीशन मैट ना हो जाए। जैसे ही ये कंडीशन मैट हो गई, यू हैव सक्सेसफुली एग्जीक्यूट दिस लूप एंड यू आर आउट ऑफ दिस लूप, एंड देन you move to this else block and you will print this thing. Hope you got a better clarity about while loops. If you already knew about loops, and those who did not know about while loops, you should have a better understanding of why do we need while loops in the first place if we had for loops, है ना। तो let's see, I think I have attached a screenshot here. Look at this screenshot I took. Look at this. So this is these loops are condition based, है ना, these loops are condition based. तो ये कंपैरिजन है, कंपैरिजन चार्ट है ये उसका, अपना क्या कहते हैं इसको, फॉर लूप एंड उसका वाइल लूप का। तो इट्स मोर ऑफ लाइक कि कंडीशन बेस्ड, ये है वाइल लूप के लिए, सो दिस वन इज़ फॉर वाइल लूप। सो दिस वन इज़ फॉर वाइल लूप, दिस वन इज़ फॉर वाइल लूप, ठीक है। ये जो है ये वाइल लूप के लिए, ठीक है, ये वाइल लूप के लिए। तो कंडीशन बेस्ड मतलब तो कंडीशन बेस्ड मतलब कि कंडीशन बेस्ड कौन सी लूप होती है, वो होती है वाइल लूप आपकी, ठीक है, कंडीशन बेस्ड होती है वाइल लूप, ठीक है। देन वी हैव दिस फॉर लूप नहीं होती, काउंट बेस्ड फॉर लूप होती है, काउंटर होता है उसमें, है ना, काउंट के हिसाब से चलता है कि यहाँ तक चलाना है। हालांकि वाइल लूप को भी काउंट बेस्ड बनाया जा सकता है, बट इन द जनरल केस यूज़र इनपुट लूप्स कौन सी होती हैं, वाइल लूप्स होती हैं, नॉट द फॉर लूप्स। फिक्स्ड रेंज वाली कौन सी होती हैं, फॉर लूप्स होती हैं, नॉट द वाइल लूप्स। तो 3-4 पॉइंट्स हैं। कंडीशन बेस्ड कौन सी होती हैं जो आपको याद रखनी है, कंडीशन बेस्ड, काउंट बेस्ड, इनपुट बेस्ड, एंड फोर्थ वन कौन सा था, फिक्स्ड रेंज, फिक्स्ड रेंज। तो इन 4 पैरामीटर्स पे आप क्लासीफाई कर सकते हो वाइल लूप एंड फॉर लूप। कंडीशन बेस्ड ये होती है, ये नहीं होती। काउंट बेस्ड ये नहीं होती, ये होती है, ठीक है। इनपुट बेस्ड ये होती है, ये नहीं होती। फिक्स्ड रेंज वाली ये नहीं होती, ये होती है, ठीक है। So that's how for while loop works. Let me give you a couple of programs. So write find n natural numbers. Find sum of n natural numbers, ठीक है। n इनपुट लो, फिर उनका सम लो यूजिंग वाइल लूप, ठीक है।
Then we can have uh, create a calculator which has plus, minus, division and multiplication operations. ये दो प्रोग्राम्स आपको करने हैं. And use while loop, also use conditional statements whenever required. And I hope you get this while loop concept gets clear to all of you, and I will see you in the next video lecture. Till then, take care, bye bye, and happy new year.